ظہور لولابی تنس خدمت من حاضر تو پیش خبرن تفصیل خطے چناب کشتواڑ کے چھاترو علاقہ من آز فورس اہلکارن تو ملٹنٹن درمیان گولن ہند تبادلہ سپودمت یا دوران انکاؤنٹرس من جیش محمد تنظیم ست وابستہ 3 ملٹنٹ ہلاک کرنا آئی یمن من اخ ملٹنٹ کمانڈر تہ شامل چھاترو جنگلس من ادوے لگاتار پتمو دو رتو پہ ملٹنٹن ہز موجودگی وچھنے یوان تو آز دوپہرن ملٹنٹن تو سیکورٹی فورس درمیان گولن ہند تبادل سپودمت یا دوران سیکورٹی فورسن بڑ کامیابی حاصل کرت 3 ملٹنٹ ہلاک کر یل زن آخر اطلاع واتنس تام علاقہ من تلاشی کاروائی جاری گلستان نیوز نمائندہ اجے شان کشتواڑ پہ مزید تفصیل فراہم کران ضلع کشتواڑ کے چھاترو علاقے میں سرکشا بلوں کو آج ایک بڑی کامیابی ملی ہے جس دوران انہوں نے 3 جیش محمد کے آتنکوادیوں کو ایلیمنیٹ کر دیا ہے. حالانکہ اس میں مارے گئے آتنکوادیوں کی پہچان کو لے کے کنفرمیشن نہیں کی گئی ہے، لیکن جو سورسز بتا رہے ہیں کہ ان پٹ یہ تھا کہ جو جیش کا کمانڈر ہے سیف اللہ وہ اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ اس علاقے میں موجود ہے، جس دوران ان پٹ کے آدھار پر جو وانی پورہ علاقے کے قریب ایک ڈھوک کے اندر ان تینوں ملٹنٹس کو کہیں نہ کہیں ایلیمنیٹ کیا گیا. جو ہمارے پاس خبریں آئی ہیں اس کے مطابق 2 پیرا راشٹریہ رائفل CRPF اور SOG کی ٹیم نے پورے علاقے کو ایک ان پٹ کے بیس پر محاصرے میں لیا گیا تھا، جس دوران فائرنگ ہوئی اور جو 3 ملٹنٹس تھے وہ ڈھوک کے اندر موجود تھے. حالانکہ ان کو باہر نکالنے کی کوشش کی گئی، لیکن جب انہوں نے اندر سے فائر کیے تو سرکشا بلوں نے پورے ڈھوک کو ہی اڑا دیا. جس دوران جب اس ڈھوک کی تلاشی لی گئی تو اس میں سے پہلے 2 شو جو کہ پوری طرح سے جلے ہوئے تھے وہ برآمد کیے گئے، 2 رائفلیں وہاں سے برآمد کی گئی. لیکن یہ سرچ آپریشن دیر شام تک چلتا رہا، جس دوران ایک اور ڈیڈ باڈی شام کو برآمد کی گئی اور وہاں سے ایک اور رائفل برآمد کی گئی ہے. اس سب کی پشت کی جو ایکس پر فوج کی طرف سے کر دی گئی ہے، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو سرچ آپریشن ہے وہ وہاں پر جاری ہے. بتاتے چلیں کہ چھاتروں میں پچھلے کئی مہینوں سے ملٹنٹس کی موومنٹ کے بعد آپریشن چل رہے تھے، اور اس کے بعد جنوری مہینے میں آپریشن تاشی 1 لانچ کیا گیا، جس میں ایک فوج کے جوان کی شہادت ہوئی اور 4 فروری کو ایک ملٹنٹ کو ایلیمنیٹ بھی کیا گیا. لیکن جو آتنکوادی تھے وہ آن رن تھے، فوج ان کا پیچھا کر رہی تھی، اور ان میں سے ہی 3 ملٹنٹس کو آج پھر ایلیمنیٹ کر دیا گیا ہے. اجے شان، گلستان نیوز، کشتواڑ. سیاحتی مقام گلمرگی من کھیلو انڈیا ونٹر گیمن ہز باضابطہ شروعات سپزمت کھلاڑین من زبردست جوش و خروش وچھنش یوان. افتتاحی تقریب من آئی آز جموں کشمیر لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سند طرف مہمان خصوصی طور شرکت کرنا. یل زن ات موقع پہ وزیر کھیل ستیج شرما، چیف سیکرٹری اتل ڈولو، رکن اسمبلی گلمرگ فاروق احمد شاہ، DC بارہمولہ مہنگا شرپا، صوبائی کمشنر کشمیر، سپورٹس کونسل سیکرٹری نزہت گل تو دویم ذمہ دار تھی موجود اس. یہ کت بان لائق زِ ایونٹس من کرن 300 کھت زیادہ کھلاڑی شرکت تو امہ وال تمام تیاریاں مکمل کرنے آمژ. जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे. یہ گلمرگی من کھیلو انڈیا ایونٹس پیش نظر سیکورٹی ہند خاص انتظامات کرنا آمد، یل زن آز تہ ٹنگمرگی من فورس اہلکاروں طرف خصوصی ناک لاگنہ آمد، یا دوران گاڑین ہز باریک بینی سان تلاشی ہینہ پتہ تمن برہ پکنک اجازت دن یوان. یل زن ذمہ داروں طرف ون آو زِ کھلاڑین تو دویمین لکن ہز حفاظت یقینی بنانے سوال شیت قدم تلنے آمد، یُتھ زن یہ پروگرام خوش اسلوبی سان انجام وات. آپ کو پتہ ہی ہے تو یہ تو جو پلیئرز ہیں وہ آج سے ہی آ رہے ہیں. یہ ہمارا انٹرنیشنل ٹائپ کا ایونٹ ہے،
तो हमारे इस सिलसिले में हमने हर जगह पर यहाँ तैनाती रखी है नफरी की, स्टार्टिंग फ्रॉम आईजी रोड से लेकर यहाँ नारबल से लेकर गुलमर्ग तक, बाउल तक। तो लोगों से हमने एडवाइजरी भी लोगों को दी है कि किस तरह की गाड़ियाँ वो इस्तेमाल करेंगे और कौन कौन से प्रिकॉशंस वो इसमें उठाएंगे। तो हमारा यही है, लोगों से गुजारिश है कि वो ट्रैफिक का कानून का पालन करेंगे और हसल फ्री मूवमेंट होनी चाहिए सबकी। हमारे जो लोग भी उधर देखने के लिए आ रहे हैं उनके भी होनी चाहिए, और जो प्लेयर्स आ रहे हैं उनके भी, और जो इंटरनेशनल प्लेयर्स आ रहे हैं उनके लिए भी हसल फ्री मूवमेंट होनी चाहिए। एक अच्छा मौका है, ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है और टूरिस्ट ये स्पोर्ट्स एक डेस्टिनेशन भी है। तो सबों को हमारी तरफ से ये है, इससे टूरिज़्म का बढ़ावा मिल सकता है और हमारी ये खूबसूरती जो है गुलमर्ग की, ये लोगों को देखने को मिल सकती है आराम से, और किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ज़रूर है, मैं यहाँ पे जो है टंगमर्ग गुलमर्ग में जो एक सर्विस प्रोवाइडर हूँ जो टूरिस्ट के साथ 12 महीने काम करता है। लेकिन हम बहुत शुक्रगुजार हैं इस सरकार के, और जो मरकज़ी सरकार है ख़ासकर यहाँ पे डीसी एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह है, उनका शुक्रगुजार हैं हम, चाहे वो एलजी सरकार हो। छठी बार यहाँ पे खेलो इंडिया के लिए, तो इसके लिए हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, क्यों इससे जो है यहाँ पे काम बढ़ेगा, टूरिस्ट की बढ़ोतरी होगी तो टूरिस्ट आएगा यहाँ पे। माह मुबारक यन सती हंदन बाजारन मज रौनक वचन शहर श्रीनगरस मज लुको तरफ वन आमुद यथ रेतस दौरान लुक खर्च करनस मज दरिया दिली हुंद मुजाहिर करान, तो यह वजह जे लुक मार्केटस मज हनस तो कन्नस मज मसरूफ वचन यम सत बाजारन मज अलग रौनक नजर गसान। ताम मुकामी लुको तरफ वन आमुद जे बाजारस मज द्रजरन प्रथ तरफ नाल वोलमुत, तो खास नजर थावन युत जन ग्राम रोट लागन ये। दीन के बारे में जितनी भी हमारे लिए इंस्ट्रक्शन है वो हमें पूरा करना पड़ती है, और बाबरकत महीना है, अल्लाह पाक इसमें बरकत करता है, गुनाहों को माफ फरमाता है। मैं मुसलमान खत जरूरी क्या गड पे आमुत अजुक परहेजगारी मिलान, तकवा मिलान। तो ये तो अल्लाह ताला की तरफ से खैर का, बरकत का, नूर का, रहमत का महीना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि अल्लाह ताला जो है ना, इस टाइम जो है माह रमज़ान के अंदर अल्लाह ताला की तरफ से रहमत खासा नाजिल होती है। एक हो गया रहमत आमा, वो तो हमेशा रहीम ही है, लेकिन माह रमज़ान के अंदर फरमाते हैं कि रहमत खासा अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाजिल होती है। और रमज़ान अगर आप देख भी सकते हैं कि मतलब जो हमारे असलाफ थे, बुज़ुर्ग थे, मतलब वो तो रमज़ान के महीने का पूरा साल इंतज़ार करते थे कि रमज़ान का महीना, ये मुबारक मुक़द्दस महीना कब आएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तो खैर का, बरकत का, जो है ना, आग से खुलासी का, अपने गुनाहों की माफ़ी का महीना है। हम में से हर कोई खताकार है। अकिस बकार यून गरीबस मदद करुन, रमज़ान यम अहकाम तिम बराबर करें, ईमानदारी हावन कि मान नफा कम थावन, ईमानदारी सान पकुन, कम मतलब कम नफा अगर जेन अल्लाह ताला तथ बरकत थमज ज्यादा, अगर वह ज्यादा नफा जेन तथ बरकत कम। मालिस माजे जिम्मेवारी बचन हज, बच्चे पालनुक, तो बच्चे से गज रोजन मान बच्चे से मालिस माज वात। खिते पीर पंचाल पूंछ के सरनकोटस मज तो ये बाजारन मज खास रौनक वचन बाजार सब्जी मेव मुख्तलिफ कस्म खजर तो दोमी चीज़ों से सजावन आमद। तमाम मुकामी लुको शिकायत बावन जे सब्जी मेव तो दोम चीज़न हंदिस कमतस मज लगातार इजाफ सपोदमुत यमकिन आम लुक मुश्किल मज हेन आमद। तमो जिला इंतजामियस पर जोर दिमुत मार्केट्स मज गस रेट मुख्तस करने यन युथ आम लुकन हंद मुश्किल दूर सपदन। सर मेरा नाम मोहम्मद अफजल, मैं ये बोल रहा हूँ सर कि आज माह रमज़ान का महीना जैसे ही शुरुआत हुई है तो यहाँ मार्केट फरूकोट में सब्ज़ी, फ्रूट, हर चीज़ जो है आसमान छू रही है। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है, कोई अदल इंसाफ नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो भी मस्त है, कोई चेकिंग वाला नहीं है। तो मैं मुतल्लिका तहसीलदार साहब से, एसडीएम साहब से ये गुजारिश करता हूँ कि फौरी तौर बाज़ार में आके इसकी चेकिंग की जाए और रेट जो है वो मुकर्रर की जाए, और चेकिंग होना ज़रूरी है। यहाँ तो माह रमज़ान का नाजायज़ फ़ायदा लेते हुए गरीब मिस्कीन लोगों को लूटा जा रहा है। सर मीट और मुर्गा जो है ना, ये भी
जो है वो 2-2, 3-3 दिन का वो बना। देखो हमारी बात हुई चेयरमैन व्यापार मंडल से, प्रेसिडेंट से, उन्होंने रेट लिस्ट जो है वो निकाली है, लेकिन महंगाई का जो है वो बड़ा जोर है। लोगों की अक्सर शिकायत है कि जितने भी दुकानदार हैं उनका अपना अपना अलग से रेट है। तो जम्मू से यहाँ पर बहुत बड़ा फ़र्क है, मेंढर में है, पुंछ में है, तो इसलिए जो है इस पर नज़रसानी की जाए, क्योंकि इसमें शक नहीं है कि सब्ज़ी का जो है वो भाव वो डेली अप डाउन होता है। तो उसके हिसाब से ताकि गरीब लोग हैं उनको अक्सर मद्देनज़र रख के ताकि सभी रमज़ान का फ़ायदा उठा सकें, गरीब जो है वो खजूर खा सके, वो फ्रूट खा सके। बात नहीं है कि रमज़ान शुरू होते ही महंगाई हो जाए। इस वक्त आलमी मंडी जो है वो महंगी है, पैसा जो है वो नायाब है। जम्मू जो है, जम्मू कश्मीर में पैसे की बहुत मारामारी है इस वक्त। हमारी रियासत जो है यानी आपने यूटी बन गई है। हमने बाज़ाब्ता इस रमज़ान में 4 सोमवार आएंगे, कल सुबह नई रेट लिस्ट इशू होगी। अगर रेट लिस्ट के मुताबिक सामान नहीं देते तो कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ होगी। मैंने तमाम दुकानदारों से गुजारिश की थी पहले ही दिन कि भाई खुदा से डर के जो भाव हुआ है 5-10 रुपये उसके ऊपर लगा के तो लोगों को दो, ये नहीं कि 100 के 500 ले लो भाई। और ये नहीं, क्योंकि रमज़ान सबके लिए है, दुकानदारों के लिए रमज़ान भी है। और बाकी आप देखो सुबह जम्मू में 700 रुपये किलो मीट है, एक हमारी मार्केट है जिसमें 500 रुपये किलो मीट है, और हमने भाव बनाया मुर्गे का। यहाँ 190 मिलता है। अगर मिलता है तो आप 2 जगह क्रॉस करिए, थाने रिपोर्ट करिए, वो फंस जाएगा। उसमें क्या दिक्कत की बात है? जो आदमी गलत बेचेगा वो कोई इस किस्म। जनूबी कश्मीर हंदिस पुलवामा सहित ताल्लुक थवन वालों बाग वालों तरफ इंतजामिया मंग कर आमद मार्केटस मज नकली खाद तो दवाहस पे रुट लागनस हवाल गसन संजीद कदम तुलने yin युस जन मेव बागन नुकसान सपद नश बचाव यन ये जन यमो बाग वालों तरफ वन आव ज मेव बागन मुख्तलिफ किस्मन हंद दवा करने पत् मुतलका महकम तरफ एडवाइजरी जारी करने यम न सिर्फ बाग वाल आवलनस मज हन शामिल बल्कि मेव बागन ते नुकसान वातन खतरे तो सूरत हाल नजर तल थवित पज मुतलका महकमस हरकत मज युन युस जन नकली खाद तो दवा करने वाले लुकन खिलाफ कार्रवाई अमल मज अन्न सहित मेव बाग नुकसान निश बचाव यन बंद मकलियाव वो दाव सोच काल दुको लज कर पन काम स्टार्ट बाग वाले लोग दवा कर दवा मिलान असल ओरिजिनल दवा मिलान कहें रेट अलग बदल और प्रिंट क्या बलाया पे वन रेट खेम हे यह दवा कर या हु क्या कोर मे जनाब शक्ल जमीन नुकसान गि वन पे ये जनाब शक्ल हकीकत यही शक्ल जमीन ये दवा कोर वारिया दवा कर पे वोत मौके पान रुद कुन कुन पे ूट वल कुल दह दह रेट मे वन तो दहन पे बह क्या कर खाद वाला नक दवा वाला नक पानस अस जनाब अपील यह हुकूमत कि दवा दिन जान बे गस नुकसान वातन ग्रेशन चेकिंग गई मौकस पे पता नहीं क्या मतलब दवा छिकित कर चेकिंग तक फायदे। आपको पता ही है कि दिन ब दिन मौसम में तब्दीली देखने को मिलती है। आने वाले वक्त में हमारे ग्रोवर्स जो है अपना काम स्टार्ट करेंगे और हम एनफोर्समेंट जो हमारा है एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर टीम, हम उनसे मोदिबाना गुजारिश करते हैं कि वो मार्केट की चेकिंग करे और मार्केट में देखे कि जो जितने भी सब स्टैंडर्ड अद्वियात है नज़र रखे ताकि हमारे ग्रोवर्स कोई तकलीफ ना हो। वादी कशीर मज ये नार वारदातन दौरान रिहायशी ढांच खाकस्तर सपदन सिलसिल बदस्तूर जारी तब जनूबी कशीर हंदिस हम पथरी DK पोरा कुलगमस मज रोज दौरान नार वारदात पेश आमुत वन इलाक मज मोहम्मद अशरफ मीर सिंद रिहायशी मकान मज अचानक नार जैर सपदमुत यम के जदस मज पूर मकान हेन आव ये मकामी लुको तो फायर सर्विस महकम तरफ नारस पे काबू प्रावन आव ताहम छन नार वारदात दौरान मकान बचाव आमुत या दौरान मकानस मज मौजूद साजो सामान नार बुझ सपुद यह मुकामी लुको तरफ इंतजामिया मंग कर आम मुतासर अयालस गई भरपूर मदद करने युन युथ जन तिम दह गुजारनस मज मुश्किल वेतरन पेन। मैं पाई सह नेबर तो बस बच हेत मे पाई बह द्रास इफ्तियार कोर आराम से बस अंदर कन बीस बह द्रास 8:30 नेबर हू नार होतमुत तो बह फिर अंदर बे कड़ शुर नेबर बे कड़म गाव नेबर
बस मे पत पाई नुकसान गो सोरे दोत कहीं द्राव न नेबर न जमीन न क्या बस अक्सी बकवाज पे वादत करू गरीबन बे क्या न जमीन न जरा बस रोजान ये हम पथरी रोजान हम पथरी बिचार गरीब यमन जमीन दितमुत दी यथ मज यमो मकान बनोमुत यह तम कोर्मुत महज फी सबिलिल्लाह वक़्त यमन यह पनुन हस की तो वन यह सा यह बिचार खानदार अमिस मोहम्मद अशरफ सह पंजाब सह नबर यह शुर 400 ये बहुत दोद निवन यहद गर बस गसन मज ओट मज तोमुल मज बेमार शुर क्या तामत पत मे वारिया फोन कर अमिस कर मदद कतन यह सा गसन कर तो अमिस पानस किडनी तमिस कहें पान यह सा यह हार्ट पेशेंट वन यह सा यह बिचार यह घास पास यह दोद अमिस सोरे अमिस यह बस मटीरियल अमिस कमर बन कर्ज वर्ज वही बहुत रोजान दनियो कनी मरग अस बूज रात 8 बजे मस्जिद शरीफस मज सामत ये गो आग नमदार क्या करो वात दिस नजरा वजरा जन मगर बिजाती एक्चुअली जबरदस्त मुफलिस अमिस कहें कॉल सुन अमिस रीज कह अमिस द्राव न कह चीज द्राव न अम अगर पलव फितुन इन शुरन बच्चे 5 अमिस बे पान अमिस किडनी अक किडनी पे कर खानदार अमिस नबर कर मूजूर कर तम सद खानदार बनोमुत यह 2-3 वरी लग बनानस मगर खुदा मर्ज अर्जी यह तम सुदी कर तम सुद आजमाइश अत क्या करो बहुत गुजारिश कर खास कर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नौ DC साहब लकुट यंग मोदबान गुजारिश बह तमिस कर बराई करम बराई इंसानियत तम वातन जाय मौका पे SDM साहबस तहसीलदार साहबस अथ आमनास सोरे आमस पे यह कह तजिब ये आज माह रमजान आज बड़ बबरकत दह हेको यह बनत हेको 8 दोन मज मकान बनत अम सुन गुजार पूर कर अहमद है और मुकामी बाशिंदा हूँ मैं हम पथरी का, जहाँ आप मनाजिर में खुद भी देख रहे हैं। कल रात के 7:45 बजे अचानक इस घर में आग नमूदार हुई और देखते देखते 3 कमरों समेत एक गाय खाना तबाह व बर्बाद हो गया। अगर हम देखेंगे ये हमारी बस्ती का एक गरीब तरीन इंसान है जिसको डोनेशन देकर हमने ये ज़मीन दिलवाई थी, और बदकिस्मती का आलम है कि अल्लाह की भी ये आजमाइश होती है कि इसका ये मकान जो है पूरा साजो सामान कल रात ख़त्म हुआ, इसमें कुछ भी नहीं बचा। अब इंसान पे एक आजमाइश होती है, लेकिन इसके साथ साथ हम सभी लोगों पे, जितने भी देखने वाले हैं, हम सबों पे ये आजमाइश है कि हम इनकी कितनी मदद कर पाएं। जैसे कि आज माह रमज़ान का महीना है, 1 रुपये को 70 रुपये। तो नाज़रीन कोशिश खबर नाम यतन सयान खुश रोजू खुशहाल रोजू फी अमान।